I am shook because growing up मुझे I think अमूल के सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट्स पता थे, लाइक बटर, क्रीम, दूध, चीज़ स्प्रेड और चीज़ स्लाइसेस. बट मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि अमूल इज़ बेसिकली मेकिंग एंड सेलिंग एवरीथिंग from khakra to dal to camel milk to atta and a lot of these very interesting products. So मैंने सोच लिया that I have to sit down and try everything out and that's exactly what we are doing today. बहुत ही सारे interesting अमूल products हैं जो कि मुझे पता भी नहीं था exist करते हैं. And I have to mention that this video is not sponsored. So मैं जो कहूँगा सच कहूँगा. Let's get started. Again, I am shocked because I had no idea Amul makes frozen pizzas. ये 130 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है which has no onion, no garlic and it's a 4 cheese pizza जिसको आपको frozen रखना है and then you can thaw it and bake it in the oven. Honestly, first impression मुझे packaging इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है. Even the graphic जो इन्होंने cover पे add किया है and it's actually a pizza box basically. So जो इन्होंने box पे add किया है, I am not a big fan of the picture also, but I love Amul cheese, so I'm hoping that ये 4 cheese pizza taste में अच्छा होगा. Look reveal कर लेते हैं quick सा. काफ़ी generous amount of cheese है, but honestly because ऊपर कोई भी toppings नहीं है तो थोड़ा सा unappetizing ये लग रहा है at this point. एंड आई हैव अ फीलिंग कि इन्होंने जो बेस एंड सॉस है उसके ऊपर जो इनका 4 चीज़ का ब्लेंड आता है देव एडेड दैट विच इज़ रियली नाइस. एंड नीचे एक चिली फ्लेक्स एंड एक ओरेगनो का पैकेट भी है. आई एम गोना पुट दिस फॉर बेकिंग एंड देन वील सी हाउ इट टेस्ट्स. सो पिज़्ज़ा इज़ आउट ऑफ द ओवन एंड ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे टिपिकल देसी हाउस होल्ड में बना हुआ पिज़्ज़ा वाइब्स आ रहा है. I would also like to mention that इस क्रस्ट को मैं thin crust तो नहीं कहूँगा because the box says that the base is thin crust, but the base is actually not thin crust according to me. And now finally, let's get to tasting it. For 130 rupees, maybe not so bad. You can keep one in your freezer when you're desperate at night, but otherwise, I feel like now we have way too many better options to honestly be eating a pizza like this. I don't think this is ever coming back into my kitchen, although it's not bad, but I definitely don't think it's gonna be my first, second, third, fifth or sixth option. So I'm gonna rate this a 4 on 10 because it's quite average. And again, like now pizzas, there's just too many options in the market to be eating something like this. I love this packaging, I love this box and जो ऊपर visual है वो भी. This is Amul का truffle, center filled milk and dark chocolates and इस reusable box के अंदर there are 4 flavors जो कि individually packed है in a different color का wrapper each. And the flavors we have here are lemon in dark chocolate, hazelnut in milk chocolate, coffee in dark chocolate and orange in milk chocolate. काफ़ी interesting variety of truffles है and I'm going to try all of them. Let's start with the orange flavored chocolate which is in milk chocolate. Orange in milk try करते हैं. शेप बेचारों की थोड़ी सी खराब हो चुकी है एट दिस पॉइंट. जो आई डोंट इवन हैव सेंसिटिविटी. मैं झंझनाहट हो रही है मुझे इस वक्त. ऑनेस्टली ऑरेंज का ऑनेस्टली बिल्कुल ही फ्लेवर नहीं आ रहा है विच इज सो वियर्ड. एक बहुत ही ओवरली स्वीट मिल्क चॉकलेट की मैंने बहुत बड़ी बाइट ले ली है, ऐसा फीलिंग आ रहा है. अकॉर्डिंग टू द विजुअल्स ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि
chocolate के अंदर there would be like a flowy filling and like the filling would be enrobed in like a chocolate thing and अंदर की filling flowy and liquidy होगी. But that's really not the case because it's literally just a big chunk of milk chocolate, no filling inside and no orange का taste also. मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मेरे साथ चिटिंग हुई है यहाँ पर बिकॉज ये वाली को हमने पूरा डाइसेक्ट कर लिया है, इसके अंदर कहीं भी फिलिंग नहीं थी एंड आई थिंक इट्स जस्ट माई किस्मत के जो मैंने पहली उठाई उसके अंदर ही फिलिंग नहीं थी. बट आफ्टर दैट हमने बाकी सबको बीच में से कट किया है एंड टर्न्स आउट द रेस्ट ऑफ देम हैव द फिलिंग. सो आई एम अगेन गोना ट्राई द ऑरेंज वन. मच बेटर. द ऑरेंज का फ्लेवर वेरी नाइस. जो क्रीम बिस्किट्स आते हैं और जो ऑरेंज क्रीम का फ्लेवर होता है एग्जैक्टली वो वाला फ्लेवर है. ऑल्दो आई लव स्वीट थिंग्स बट इवन फॉर मी आई स्टिल फील दिस इज टू स्वीट इवन विद द टार्ट ऑरेंज फ्लेवर. आई हैव द हेजलनट फ्लेवर नाउ. आई डोंट नो अगर मुझे आज कुछ हो रहा है बट इवन दिस फॉर मी इज टू स्वीट. मतलब एक ऐसे 3 बाइट खा के लग रहा है क्या मुझे एडमिट कर लो हॉस्पिटल में. That's too much. Not enjoyable at all, honestly. मुझे नहीं पसंद आ रहा है पर्सनली एंड मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी बिकॉज द पैकेजिंग एंड द विजुअल्स लुक रियली नाइस. वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. आई एम गोना रेट दिस a 3 on 10. एज अ बिग फैन ऑफ अमूल प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका हूँ दैट मुझे ज़्यादातर चीज़ें अभी तक पसंद नहीं आ रही हैं. काफ़ी उम्मीद के साथ अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ अमूल कढ़ाई दूध विच इज़ अपेरेंटली इंडियाज ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक. नो प्रिजर्वेटिव्स, नो एडेड फ्लेवर्स, ओनली द गुड स्टफ एंड काफ़ी क्यूट कलर्स हैं. आई एम गोना ओपन दिस एंड पोर दिस इनटू अ ग्लास. सो ये 30 रुपीज़ का कढ़ाई दूध है. ओह दिस इज एक्चुअली नाइस. बहुत ही थैंक गॉड ओवरली स्वीट नहीं है. इट्स परफेक्टली स्वीट एंड उसके अंदर वो से नाइस कैरमलाइज्ड फ्लेवर आ रहा है. दिस इज समथिंग दैट आई लाइक एंड आई एम नॉट इवन अ ड्रिंकिंग दूध पर्सन but this is I can finish the entire thing. Thank God for that. I'm gonna rate this a 9 on 10. 9 on 10 इसलिए because normally on an everyday basis this is not the product that I would buy or consume, but for once in a while I like the taste of this. Alright, I am now trying the Amul का आम्रखंड which is made with real mango and this is 52 rupees का. 200 grams का पैकेजिंग है. लुक्स लाइक योर रेगुलर मदर डेयरी का योगर्ट वाला पैकेजिंग. आई क्वाइट लाइक इट. लेट्स सी व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड. द कलर एंड कंसिस्टेंसी लुक वेरी वेरी एपेटाइजिंग एंड इसके अंदर ऐसे इलायची के स्पेक्स भी हैं विच लुक्स गुड. इट्स एक्चुअली सो थिक एंड क्रीमी. I love this consistency. Almost like a nice custardy vibe. It coats your mouth and it feels very nice. Although I feel like this has too much elaichi. मुझे एक बाइट लेके लग रहा है कि oh god, मुझे 2 minutes लग गए to process this because the elaichi is very very overpowering and honestly मैंगो का इसके बाद बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है. अगर आप ये किसी को ब्लाइंड फोल्ड करके खिलाओगे तो उनको सिर्फ लगेगा इसमें इलायची है एंड देयर इज नो मैंगो इन आम्रखंड. सो ऑनेस्टली जितना ये अच्छा लग रहा था उतना ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है. अनलेस यू आर ऑब्सेस्ड विद कार्डमम मे बी दिस इज फॉर यू बट आई डेफिनेटली फील लाइक एक बाइट के बाद मुझसे और ये नहीं खाया जा रहा है. आई ऑल्सो फेल लाइक इट्स अगेन अ लिटिल टू स्वीट. सो आई एम गोना रेट दिस a 3 on 10. I am now trying this 100 rupees का अमूल चीज सॉस जिसके आगे लिखा हुआ है पिज्ज़ा बट आई एम नॉट गोना हैव दिस विद पिज्ज़ा. मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ फन फ्लिप्स के मैजिक मसाला से. अगेन अनदर प्रोडक्ट जो मुझे पता नहीं था बाय द वे कि एग्जिस्ट करता है एंड इसका पैकेजिंग इज़ नॉट दैट नाइस बट आई एम होपिंग दैट इसके अंदर से एक नाइस डिप टाइप चीज सॉस निकलेगी. लेट्स लुक.
कंसिस्टेंसी सॉस की जगह इज मोर वाटर, तो अमूल चीज़ वाटर, बट इसको ट्राई करते हैं. इट्स सीजनड विद oregano and all. Let's try it out. तो वाह, ने काफ़ी अच्छा कॉपी किया बाय द वे. दिस एक्चुअली टेस्ट्स लाइक पिज्ज़ा. इसमें पिज्ज़ा सीजनिंग वाला वाइब है एंड द टेस्ट इज एक्चुअली रियली नाइस. इट्स ऑल्सो नाइस एंड चीज़ी. अगेन आई जस्ट विश दैट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती so that it would have been nicer to eat it as a dip also, but I think maybe with nachos this could be even better if you just have to pour it on top. I quite like this actually. I'm gonna rate this an 8 on 10. I now have Amul Almendo, which is chocolate coated almonds. 230 rupees का काफ़ी सुंदर सा reusable box है and इसके अंदर you get 2 packets of almonds coated in chocolate and काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पैकेजिंग है. ऑनेस्टली आई लव हाउ इट लुक्स एंड ऑल दी आलमंड्स आर इंडिविजुअली कोटेड. काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. उम्मीदें बढ़ चुकी हैं इस टाइम पर. इट्स एक्चुअली क्वाइट प्रिटी. ऑनेस्टली सो गुड. चॉकलेट का क्वालिटी यू कैन टेल it's real chocolate. It's not compound. Perfectly sweet, nice and balanced. I love how smooth the chocolate is. Almonds are crunchy. Everything about this is perfect. I'm gonna rate this a 10 on 10. Okay, so these are Amul True Fruit Nutrition Drinks. मुझे पहले लगा कि ये juices है, but it says it's a dairy based drink. So I honestly don't know what to expect. I have orange, mango and apple here and I think आज मैं orange वाला try करने वाला हूँ. Although I would like to point out कि it says fruit nutrition, but इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है even in the ingredient list. पहला है milk solids, फिर है sugar and उसके बाद है orange fruit preparation, which means that इस drink में जितना fruit है उससे ज़्यादा चीनी है. So don't know what to expect. Let's try it out. I'm especially curious about an orange की milk based drink. ये दिखने में तो normal orange juice ही लग रहा है, but I don't know why it says dairy based drink. एकदम रसना टैंग वाला वाइब आ रहा है. I love this smell. बहुत ही ज़्यादा सस्ती एंड बैड फ्लेवर्ड ऑरेंज स्क्वॉश जो होती थी. मुझे याद है स्कूल के बाद हमेशा किसान की ऑरेंज स्क्वॉश की बॉटल घर पे होती थी, विच आई ऑनेस्टली यूज टू लाइक. बट दिस इज फैंटा, बट लाइक इट्स अ वेरी बैडली फ्लेवर्ड फैंटा. मतलब जो ऑरेंज का फ्लेवर आ रहा है, स्मेल इज इन फैक्ट क्वाइट इम्प्रेसिव. द फ्लेवर इज वेरी वेरी मरावा एंड थोड़े से लग रहा है गले ऑरेंजेस से बना हुआ है, वेरी ऑनेस्टली. एंड डेयरी वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आ रही. मिल्क सॉलिड्स इसमें नॉट श्योर कहाँ हैं तो क्यों हैं. दिस इज लाइक अ फैंटा, बट आई वुड पिक दैट एनी डे ऑनेस्टली. वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई एम गोना रेट दिस अ 3 on 10. मैंने मन की शांति के लिए एप्पल भी सोचा ट्राई कर ही लिया जाए. इसका ऐसे बहुत ही ज़्यादा लीची जूस कलर है एंड अगेन द स्मेल इज सो, ऐसे लग रहा है कि जैसे अब भी हिमाचल के पेड़ों से मैंने उठा के एक एप्पल तोड़ लिया हो, वैसी स्मेल है. एंड टेस्ट अगेन इज बहुत ही ज़्यादा बैड. इनके ड्रिंक की फ्लेवरिंग इज वेरी वेरी ऑफ एंड ऑनेस्टली सेम रिव्यू फॉर दिस इज वेल 3 on 10. अगेन अ प्रोडक्ट जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था. इन द 29 years ऑफ माई एग्जिस्टेंस, दिस इज अमूल का मोतीचूर लड्डू विच कम्स ऐसे नाइसली पैक्ड. अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो तो आई थिंक दिस इज नाइसली डन. आई होप इट टेस्ट इक्वली गुड. 110 रुपीज़ के हैं ये 6 लड्डूज. फर्स्ट प्लास्टिक लिड, देन अ प्लास्टिक सील. ऑनेस्टली देख के तो मुझे लड्डू ज़िंदगी से ज़्यादा खुश इस वक्त नहीं लग रहे हैं. थोड़ा बहुत पिस्ता एंड ऑल इज देयर विच लुक्स नाइस,
बट ओवरऑल वो जो ऐसे खिले खिले, मतलब आई बाय द वे मोतीचूर लड्डू इज़ लाइक माई फेवरेट मिठाई ऑफ ऑल टाइम्स। एंड मेरा ऐसा ऑब्सेशन है बंसल के मोतीचूर लड्डू के, ऐसे लाइक ईच मोती इज़ लाइक हैज़ एन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, and it just all comes together to form a beautiful ऐसे देसी घी का लड्डू। and but like it should be ऐसे soft कि आप इसको उठाओ so it's ready to crumble, but it will wait until it goes into your mouth to crumble and fall apart and then melt in your mouth. तो you know how passionate I can get about मोतीचूर लड्डू। तो वैसी वाइब तो इनसे नहीं लग रही है, ये एकदम साथ में चिपक के एक बन चुके हैं। सो आई डोंट नो कितना मोती इसमें बचा है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। देखो गाइस, सच बताऊं तो मैंने इसे बुक को कवर से जज कर लिया था एंड मुझे लग रहा था कि आई मे रिग्रेट इट, बट एब्सोल्युटली नॉट। इट टेस्ट एज बैड एज इट लुक्स। ऑनेस्टली बिल्कुल भी मोतीचूर वाइब्स नहीं है। एंड आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी द वर्स्ट मोतीचूर लड्डू आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। I would definitely not recommend spending any money on this. I'm gonna rate this a 0 on 10. Both the texture and taste is nowhere close to what a motichur laddu should be like. Honestly, जो मेरी पूरी excitement थी on discovering the new products, also because मुझे अमूल इतना ज़्यादा पसंद है and जो मुझे अमूल के सारे products जो मैंने I've grown up eating, I'm obsessed with them, तो आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बट वो ऑलरेडी ऐसे यहाँ से यहाँ आ चुकी है। देयर स्टिल अ फ्यू मोर प्रोडक्ट्स टू गो। आई एम होपिंग इफ देयर इज अ चांस फॉर दिस टू काइंड ऑफ टर्न अपसाइड डाउन। लेट्स सी। Up next, I have Amul Rabdi for 25 rupees. Again, it's a milk product, so I'm hoping that Amul has potential to ace it, and I love Rabdi. It's a nice, thick and creamy. Ooh, this actually looks nice. The color and the texture looks yum. I love this. This is how it is supposed to be. And मम्मी कभी कभार ऐसे बिग क्वांटिटी में रबड़ी बना के फ्रीज़र में रखती है, मुझे बिल्कुल वैसी वाइब आ रही है। सो फॉर आई थिंक क्विक फिक्स एंड लास्ट मिनट क्रेविंग्स, इफ यू वांट, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन टोटली गो वेल। अगर कभी घर पे जलेबी आई है एंड यू वांट अरे रबड़ी, बट इट टेक्स सो मच टाइम ऑनेस्टली टू मेक एट होम, सो आई थिंक यू कुड ईजिली गेट दिस वन स्मॉल पोर्शन, फिनिश इट एंड बी डन विद इट. I'm glad I've discovered one product that I'm happy to discover today is definitely going to be this. I'll rate it a 10 on 10 because the taste and the consistency is both on point. Amul chocolate cookies made with Amul butter and no vegetable oil. Got to love butter cookies, got to love Amul butter. Cookies are also looking nice and cute. तो ये 25 रुपीज़ का पैकेट है. चॉकलेट चिप इन्होंने से एक बीच में डाल दिया है फॉर फॉर्मेलिटी पर्पसेस. The texture is really nice, crunchy, buttery, but I don't like इसमें चॉकलेट का टेस्ट at all. I don't like the aftertaste of it. इसमें भी अगेन शुगर भी है, लिक्विड ग्लूकोज भी है, तो आई फील लाइक मोर चॉकलेटी से ज़्यादा मुझे मोर शुगरी, ज़्यादा स्वीट ज़्यादा लग रहा है चॉकलेटी से. सो वो जो चॉकलेट का फ्लेवर है दैट इज़ ऑनेस्टली लैकिंग एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो तो होगा ही रिच चॉकलेटी फ्लेवर, विच इज़ वाई आई एम गोना रेट दिस अ 5 on 10. Amul almond bar, almond marshmallow coated with creamy milk chocolate. And after trying all of this sounds like चीनी on चीनी on चीनी on चीनी. And इसका भी first ingredient है sugar and second ingredient है liquid glucose. तो मतलब एक मेरे लिए कमरा बुक कर ही लो गाइस हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं वहीं जा रहा हूँ ये सब खाने के बाद. This is what it looks like, quite plain and simple. Almonds अभी बाहर मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, but let's try it out.
ये जो ग्लूकोज इसमें डाले मुझे चढ़ा दो, बिकॉज आमंड नहीं आया है। आई हैव टेकन अ प्रिटी डिसेंट साइज बाइट, बट आमंड नहीं आया है। चीनी के पार्टिकल ज़रूर आ रहे हैं, मैं इसे चबा रहा हूँ तो ऑनेस्टली आई कुड फील वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ चीनी बिटवीन माई टीथ। ये क्या चल रहा है? आई एम honestly done with this at point. This is honestly a 0 on 10. अमूल की कुकिंग चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, आई यूज़ देम ऑल द टाइम, बट ये खाने वाली चॉकलेट they've just made it too sweet, and although this has cocoa butter, I can barely taste the chocolate, I can barely taste the almond. बस मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मार्शमेलो खा रहा हूँ, not my vibe at all. Honestly guys, at this point I am totally done, and 5 years of running this channel or maybe more, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, but I've never done this कि 3 प्रोडक्ट्स जो हमने ऑर्डर करे थे, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है to have any more sugar or try any of these things. एक अमूल की काजू कतली जो कि ऐसे क्यूट डायमंड बॉक्स में है, 1 अमूल स्टर्ड फ्रूट योगर्ट जिसमें अगेन 100 ग्राम्स में 18.4 ग्राम्स तो चीनी ही है, and there's अमूल खीर which I was excited to try, but अब मुझसे और honestly नहीं हो पाएगा. If any of you have tried out any of these 3 products, तो comments में please अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना so it can help others watching this video. And मुझे शूट करने में तो मज़ा नहीं आया है, but if you enjoyed watching it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel. अब I will go marinate in my disappointment because a brand that I love so much, उनके most of the portfolio that I've tried today is so disappointing, so I'm going to be very sad. But I will see you guys next week with a brand new video. Until then, happy eating something else, not this. Happy eating something else.